Hello students, yesterday we have discussed about little different examples. I am always using that word little. You may feel that you are saying little but little big difference is there as compared to the previous example. My intention is that only you should not feel that this example is totally different as compared to the previous. The points which we have studied already, those points we are using means small difference is there. Okay, now look today's example. If the points A 61, B 82, C 94 and D P3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P. If you will see, then the coordinate of point D are little different. Okay, P3 means here we have to find out the value of P. Okay, look here. This example you can solve by using two methods. Two ways are there. Anyone you can use, which you are feeling simple that you use. Both method I will tell you. First method is that, okay, for that understanding purpose I will draw here one first of all parallelogram. Look here. No need of drawing figure also. If you are drawing figure, then only one intention is that you know the depth of the example, and that is little different expression, or we can say that is little different impression of you people on the paper checker or examiner. Okay, look here. If the points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram taken in order, ऐसा बोला है, यानी कि A इधर, B इधर, C इधर, D इधर. Okay, now look here. Taken in order, they find the value of P. I was telling about the two ways how to solve this example. Okay, I told you there are two ways you can solve this example by using two ways. If you will see carefully, then you will come to know that here we know the coordinates of A, B, C, but now point is of only D. In the coordinate of D, x coordinate of point D is not given, that we have to find out, and it is mentioned by using letter P. Okay, then for finding that purpose, I think you well know about it, the coordinates, or we can say the properties, they will keep that point aside, coordinates, we will directly touch to the point. The properties of the parallelogram, when we have discussed some examples regarding to the distance formula, that time I have shown you one example regarding to the vertices of the respective quadrilateral. Vertices of the respective quadrilateral means what? Vertices were given over there, and by using those vertices we were trying to identify the given quadrilateral is a rectangle, it is square, it is rhombus, it is, I told you that day also, parallelogram. Then that time also I reminded you people, you must know while solving these type of example, you must know the properties of that respective shape. It may happen they make you triangle also. Okay, like that points we have discussed before that. Okay, if you want to remind that, then you can see that video also, you will come to know that. Okay, when we are going to solve these type of example also, here also we must know the properties of that respective shape which is mentioned in the question. Here which shape is mentioned in the question? Parallelogram. Parallelogram means you know that very well, the quadrilateral which is having opposite sides parallel, not only parallel but also equal. Okay, now look here, if opposite sides are parallel, then length of this side is equal to, look here, AD is equal to BC and AB is equal to CD. I was telling you how to solve this example. I told you in the beginning two methods are there. First method is that AB is equal to CD, we know that very well, means distance of AB is equal to distance of CD. You can use that formula. For finding the distance of AB, which formula we are using? Distance formula. For finding CD also we have to use distance formula. दोनों तरफ लिखो और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, फाइंड आउट करो. एक मेथड है, और दूसरी एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड है. ओके, by using the midpoint formula also we can solve this example. How we can solve by using midpoint formula? अगर तुम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हो तो डिस्टेंस फार्मूले में तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद दो आंसर आ सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं उसके, समझ में आ रहा है? दो आंसर आ सकते हैं, दोनों आंसर भी तुमने लिखा है तो भी करेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अगर इधर हम ए सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द मिड पॉइंट, देन दैट इज ऑल्सो करेक्ट. हाउ टू सॉल्व दिस? लुक हियर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ओके, we know that parallelogram opposite sides are equal, diagonals are not equal, but diagonals are bisecting each other. Means here look, diagonal which is AC and diagonal which is BD, when those diagonals are intersect with each other, suppose I have considered here point R, when those diagonal will intersect with each other, then AR is equal to RC and BR is equal to
आर डी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है बाइसेक्ट ईच अदर, दैट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज। और ये प्रॉपर्टी हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमें प्रॉपर्टी मालूम हो तब। समझ में आ रहा है? अब अगर अभी इधर पैरेललोग्राम दिया है तो वो डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज भी मालूम होना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर वी हैव डिस्कस दोज प्रॉपर्टीज। Okay, now I am going to use that property and I will tell you. Okay, for understanding purpose, that property also I will mention here. We know that, what do we know, that the diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect each other यानी कि क्या, डिस्टेंस सेम, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बाइसेक्ट ईच अदर, इधर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले नहीं है, इधर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स दैट, व्हाट इट मीन्स दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर AC, अगर AC से AC देखा जाए तो BD ने AC को बाइसेक्ट किया है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है? इक्वल हो गया यानी कि R पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। सेम उसी तरह BD को AC ने बाइसेक्ट कर दिया, BD को AC ने बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल हो गया। अगर ये डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल है तो R मिड पॉइंट हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग बोथ द डायगोनल्स, बोथ टाइम दोज आर सेम। जो कोऑर्डिनेट्स हम इधर फाइंड आउट करने वाले हैं वही कोऑर्डिनेट्स इधर भी आएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो इधर तुम ऐसे भी सोच सकते हो, R के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करना जा रहे हैं। ओके, तो R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, बाद में आंसर निकालेंगे तो भी चल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसीजर होगी। इधर हम कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड आउट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स वी वांट टू फाइंड आउट ओनली वैल्यू ऑफ P। अंडरस्टूड? मीन्स हियर बोथ कोऑर्डिनेट्स वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट, ओनली x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट DA फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने ये लिखा है। देखो, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, देन मैंने अभी जो बोला वही लिखता हूं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि AC का जो मिड पॉइंट है कौन है, R, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, BD। राइट? यानी कि AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट होने के कारण जो उनके कोऑर्डिनेट्स है वो इक्वल रहेंगे। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? यानी कि R क्या हो गया, AC का भी मिड पॉइंट हो गया और BD का भी मिड पॉइंट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, देन बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, we get, what we can get, first of all I will write here midpoint formula for this. What is midpoint formula? x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2, सेम ही फॉर्मूला दोनों तरफ आएगा, x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. ओके, अभी x1 x2 की, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू क्या होगी, देखो AC हमने कंसिडर किया है, AC ये किसके मिड पॉइंट है, ये देखो ये किसका मिड पॉइंट है, इधर हमने जो लिखा है मिड पॉइंट फार्मूला AC का, और ये किसका है, BD का। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 फॉर दिस, एंड फॉर दिस B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 y2। डू अंडरस्टैंड? तो पुट करो लाइक दैट। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मालूम है, इधर लिखने की x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू अभी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन मेंशन ओवर देयर। ओके, यू लुक दिस एंड वी विल पुट हियर, नाउ वी विल पुट, लुक हियर, तो क्या मिलेगा, देखो 6 + 9 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इधर भी हम वैल्यू पुट करेंगे 8 + p डिवाइडेड बाय 2 और 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, कैसे वैल्यू पुट किए, देखो इधर दिखा रहा हूँ मैं अभी। A के कोऑर्डिनेट्स देखो, x1 मैंने क्या बोला, A और C के कोऑर्डिनेट्स पहले इसके लिए देखने हैं। ओके, क्योंकि x1 y1 कौन है, A के कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 कौन है,
सी के कोऑर्डिनेट्स। तो अभी देखो इधर, समझ में आएगा तुम्हें, अंडरस्टूड। ये देखो, ये x1 y1 है, x1 क्या है 6 और y1 क्या है 8। इधर देखो x1 6, ओके, x1 क्या है, अच्छी तरह से देखो, a और c कंसिडर करेंगे हम, a और c कंसिडर कर रहे हैं इधर, करेक्ट है ना, a और c, a x1 है, a x1 y1, a और c, b a b c d 4 कोऑर्डिनेट्स है, इसमें x1 y1 a और x2 y2 ये नहीं कंसिडर करना है। देखो a और c, a और a है x1 y1, a है x2 y2। तो देखो इधर x1 की वैल्यू क्या है 6, ओके, x1 की वैल्यू 6 और x2 की वैल्यू क्या है 9। इधर देखो 6 + 9। नेक्स्ट y1 की वैल्यू क्या है 1 और इधर इधर, और y2 की वैल्यू क्या है 4। तो देखो 1 + 4। सेम उसी तरह b और d देखो, x1 की वैल्यू है 8, ओके, x2 की वैल्यू है p, देखो इधर दिख रहा है 8 + p। नेक्स्ट y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 3, देखो इधर 2 + 3। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अभी सॉल्व करेंगे। देखो गलती से इधर उधर मत करो। 15 डिवाइडेड बाई 2 और क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 + p, एडिशन नहीं हो सकता तो ऐसे ही लिखेंगे 8 + p डिवाइडेड बाई 2, कॉमा ये क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। हमने इधर लिखा है ऑलरेडी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए सी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट बी डी, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स इधर आएंगे वही सेम कोऑर्डिनेट्स किधर आएंगे, इधर भी आएंगे। अगर देखोगे तो समझ में आएगा। देखो इधर y कोऑर्डिनेट 5/2 आया है, इधर भी y कोऑर्डिनेट क्या है 5/2 आया है। अभी प्रॉब्लम किसका है x कोऑर्डिनेट का है, तो हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट और p की वैल्यू निकालेंगे। देन दो पार्ट्स करता हूँ। देखो इधर क्या है, देखो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इधर क्या है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 8 + p डिवाइडेड बाय 2। अभी सम ऑफ यू दे में थिंक ऐसा क्यों लिखा है, ये कंपेयर क्यों किया है, कंपेयर कर सकते हैं, हाँ कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि r जो कोऑर्डिनेट, r जो मिड पॉइंट है वो r मिड पॉइंट AC का भी है और BD का भी है। समझ में आ रहा है, यानी कि इधर हमें जो x और y कोऑर्डिनेट मिले हैं वही सेम x और y कोऑर्डिनेट इधर भी मिलने वाले हैं, इसलिए हमने x कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आता है देखो 2 इन ब्रैकेट 8 + p इज इक्वल टू 15 × 2, करेक्ट, 15 × 2, देयरफॉर 2 × 8, इधर ही लिखता हूँ 2 × 8 16 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 × p 2p इज इक्वल टू 15 × 2 30। ट्रांसफ़र करो, क्या आता है देखो 16 को उस तरफ ट्रांसफ़र करो, 2p इज इक्वल टू 30 - 16। क्या क्या है देखो, ये जो 16 + 2p है इस 16 को उस साइड ट्रांसफ़र किया, तो ट्रांसफ़र करने के बाद क्या आया देखो 2p इज इक्वल टू 14, देयरफॉर p इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या आया 7, यानी कि p की वैल्यू क्या हो गई 7। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे हमें क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट्स को यानी कि p को फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस हो तुम्हें पूछ सकते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चंस पैरेललोग्राम के बारे में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। दूसरे भी शेप्स लेके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये आइडिया यूज़ करना है। अगर तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा है, अगर प्रॉपर्टीज तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रहे हैं, तो एक सिंपल सा वे है हमारे लिए। क्या है सिंपल सा वे? यूज डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में कैसे करते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CD। समझ में आ रहा है? ओके, दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, सॉल्व करके स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हमने देखे एग्जांपल्स, इक्वी डिस्टेंस के एग्जांपल जो देखे हैं वैसे ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है। इक्वी डिस्टेंस के एग्जांपल तुम्हें याद आ रहे होंगे। ओके, डिस्टेंस फार्मूला इक्वी डिस्टेंस एग्जांपल, 1 पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। तो हमने वो दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था, वैसे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो, उधर भी आंसर आएगा। लेकिन वो लेंदी प्रोसीजर है, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट मेथड तुम्हें बताई है। शॉर्टकट मेथड में हमें एक ही काम करना है, प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम के बारे में क्या होती है, बाइसेक्ट ईच अदर। जिधर बाइसेक्ट होगा उधर ही ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल पैरेललोग्राम के हमें इस तरह से सॉल्व करना है। शॉर्टकट में अभी एक पेज पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो इधर वही एग्जाम्पल। If the points A61, B82, C94 and DP3 are the vertices of a parallelogram,
टेकन इन द ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ p. कोई फिगर, we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other, then coordinates of point midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD. by using midpoint formula हमने यूज़ किया, वैल्यू पुट की, सेम आंसर आया, और फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो आंसर क्या आया 7, और फाइनल में आंसर ऐसा लिखना है द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 7. प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ इधर, एग्जांपल प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. एग्जांपल क्या है देखो, इफ़, देखो अच्छी तरह से, इफ़ -2 -1 b a0 c 4b and d 1 2 are the vertices of a parallelogram, find the values of a and b. अभी इस एग्जांपल में हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वही प्रॉपर्टी यूज़ करके फाइंड आउट करने की कोशिश करो. ओके, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टाइप विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन केस ऑफ सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला. इधर मैं सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला स्टॉप कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीडियो के ऑनवर्ड्स मैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें इस लेसन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ. एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 तुम सॉल्व करने की कोशिश करो. मैंने जो टाइप्स लिए उसी टाइप्स के एग्जांपल दोनों एक्सरसाइज में है. प्रैक्टिस करो. कुछ प्रॉब्लम्स है तो व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं सॉल्व करके तुम्हें रिटर्न भेज दूंगा. सम स्टूडेंट्स आर दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, दे आर सॉल्विंग एंड दे आर सेंडिंग ऑन माई व्हाट्सएप, और आई एम चेकिंग, आई एम टेलिंग देम विच आर द रॉन्ग पॉइंट्स. इफ़ यू आर ऑल्सो सॉल्विंग देन सेंड मी. बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था. मैंने चेक करके जो प्रॉब्लम्स है उनके और जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए हैं. अगर तुम्हें भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो तुम भी ये एग्जांपल सॉल्व करो, एक्सरसाइज भी सॉल्व करो. एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद भी कुछ डाउट आ रहा है, कुछ एग्जांपल सॉल्व नहीं हो रहे, तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके उसके फ़ोटोज़ भेज दूंगा और तुम स्टडी कर सकोगे. ये सारे पॉइंट्स तुम्हें किधर लिखने हैं, दोज ऑल पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन द नोट्स नोटबुक. नोट्स की जो हमारी नोटबुक है उधर लिखने हैं. आज जो एग्जाम्पल दिया है वो भी एग्जाम्पल सॉल्व करो और नोट्स में लिखने की कोशिश करो. कुछ प्रॉब्लम्स है तो भेज दो. ओके, थैंक यू.